اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹر ون دیکھنے والے تمام معزز خواتین حضرات کو میری جانب سے، ہمارے پورے سٹاف کی جانب سے، ہمارے MCR PCR میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب سے، کیمرہ مین کی جانب سے، ہمارے ڈائریکٹر ندیم عثمانی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کے اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے سب چلتا ہے، اور آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست شکیل شاہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ جس طرح پچھلے ہم نے ویکس میں پروگرام کیے اور بڑے اچھا اس کا فیڈ بیک ملا، بڑے اچھے آپ نے ہمیں میسیجز کیے، کالز کی، اور ہمیں ہماری غلطیاں بھی بتائی، اور ہمیں ہمارے جو مسائل ہیں جس پہ ڈسکس کرنے چاہیے ان کا بھی لوگوں نے بتایا۔ تو سر مسائل تو میرے بھائی، میرے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، انسان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ختم نہیں ہوتے۔ جس طرح میں نے فرسٹ پروگرام میں اپنے ایک مہینہ پہلے جب فنکاروں کے لیے ایک پروگرام کیا تھا جس پہ ہم نے بتایا تھا کہ فنکار کس طرح سروائیو کر رہے ہیں، صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، اپنے شہر کی بات نہیں کر رہا، میں پورے آل اوور پاکستان کے فنکاروں کی بات کر رہا ہوں، اپنے تمام صوبوں کے فنکاروں کے، سب ہمارے اپنے فنکار ساتھی ہیں کہ گورنمنٹ نے اب تک ان کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا کہ جس سے ان کی پریشانیاں حل ہو سکیں، یا وہ بھی اس طرح۔ اور اب کیونکہ آج چاند رات ہے، پہلے تو میں آنے والی عید مبارک صبح آپ کو ایڈوانس میں بہت بہت عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مستحق تک ان کا حصہ ضرور پہنچائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ فنکاروں کی بات ہو رہی تھی خواتین حضرات، تو آج بھی ہمارے درمیان وہی ٹاپک ہوگا، وہی فنکار ہوں گے، وہی باتیں ہوں گی، لیکن کچھ ایسی کڑوی اور سچی باتیں ہوں گی جو ہم کہنا چاہتے ہیں، جو فنکار کہنا چاہتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے، میٹرو ون ٹیلی ویژن کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ تک پہنچائیں گے، کوشش کریں گے کہ کاش ارباب اقتدار تک ہماری بات پہنچ جائے اور اب فنکاروں کا بھلا ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کو دیکھا کریں، یوٹیوب پہ دیکھیے، سب چلتا ہے میٹرو ون کے نام سے، شیئر کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ملتے ہیں جی ایک ایسی خوبصورت اسٹیج ٹیلی ویژن کی فنکارہ سے، ہوسٹ سے، بہت اچھا کام کیا ٹیلی ویژن پہ، ہوسٹنگ بہت اچھی کرتی ہیں، ایکٹنگ بہت اچھی کرتی ہیں، خود شکل ہے، خوش مزاج ہیں۔ آئیے ملتے ہیں مہک نور سے۔ کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل، السلام علیکم، اور میں ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن میں نے تو ایسا سوچا تھا کہ آپ کے پروگرام میں اگر مجھے تھوڑی بہت آڈینس سے جو ہے وہ ملاقات ہو جائے گی، لیکن افسوس پھر وہی کرونا۔ نہیں، SOPs کے تحت ہم آڈینس نہیں بلا سکے، اور دوسری بات یہ کہ پہلے تو آپ کو عید مبارک ایڈوانس میں بہت بہت خیر مبارک۔ ٹھیک ہے، خیر مبارک ماشاءاللہ، اور خوش نظر آ رہی ہیں۔ کل عید ہے، کل آپ کیا کریں گے یہ ابھی آپ سے پوچھوں گا میں۔ بالکل چلتے ہیں جی ایک ایسے سماجی رہنما سے، ایسے انسان دوست انسان سے جو فنکاروں سے پیار کرتے ہیں، انسانوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، جہاں جہاں ان کی خدمات ہوتی ہے وہاں وہ صف اول کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی پوری خدمات ان تک پہنچاتے ہیں۔ لائنز ایریا سول سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، نیڈ آف لائف کے صدر ہیں، اور اسی طریقے سے پاک میمن ویلفیئر صدر کے چیئرمین ہیں جناب اشرف میمن صاحب۔ السلام علیکم اشرف بھائی، کیسے ہیں سر؟ ماشاءاللہ یو آر ویری لکنگ گارجیس۔ بہت اچھے لگے۔ دیا ہے کہ صبح عید ہے تو آج چاند رات ہے، جی جی، اور اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے فنکار آپ نے بلائے ہیں، جی جی، تو میں نے کہا چلیں ان کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے گرومنگ ہماری بھی ہو جائے گی۔ سر آپ کی وجہ سے لوگوں کی گرومنگ ہوتی ہے، اور بڑا اچھا فیڈ بیک جو آپ کی باتیں جو لوگوں نے نہیں، سنی، وہ تو بڑی سنجیدگی سے بات کی جا رہی ہے کہ فنکاروں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے جی وہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے، اور یہ سب سے بڑا اہم طبقہ ہے اس سر، معاشرے۔ اس پہ میں ابھی ڈسکس کریں گے۔ میں اگلے مہمان سے اپنے دوست سے تعارف کراؤں، اسٹیج ٹیلی ویژن کا، فلم کا بہت اچھا فنکار، جسے نہ صرف پاکستان سے باہر جا کے بھی اپنے وطن کا نام روشن کیا، بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھے جملے دیتا ہے جی، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، ہم سب کا چہیتا۔ کہتے ہیں نا لوگ آرٹسٹ کسی کے چہیتے ہوتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو یہ ہم فنکار اس کو لائک کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے عامر ریمبو، کیسے ہے بھائی؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیے شکیل بھائی کیسے ہیں؟ کیا سنائیں گے؟ اے یار سن خان صاحب کی ٹھمری سناؤں کوئی، میڈم کے گانا کوئی، وہی پک گئی ہیں باتیں سن کے، ہے نا؟ اب کچھ نیا ہونا چاہیے۔ نہیں ہو تو رہا ہے 5.5 مہینے سے، اور کیا پرانا؟ یہ کبھی زندگی میں سنا تھا یہ باتیں؟ یہ اب ہم پرانا لگنے لگا، یہ اس سے زیادہ ہونے والا ہے شکیل بھائی۔ یہ مینس کہ ہم لوگ یوزڈ ٹو ہو چکے ہیں۔ جی ہاں۔ آپ سے بات کی جائے گی خواتین حضرات، ان تمام فنکاروں کے ساتھ ہم نے کہا کہ ہم ڈمی کے طور پہ پاکستان سیاست کی ایک ایسی شخصیت کو جو بہت ہی خوش شکل ہے، بہت ہی دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، بظاہر بہت اچھے انسان ہیں، بظاہر کیا ظاہر بہت اچھے انسان ہیں، سوچا ان کو بلاتے ہیں یہاں پر اور ان سے بلا کے فنکاروں کے مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، اپنی حکومت کی سائٹ میں کیا فنکاروں کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ جناب قریشی صاحب کہتے ہیں سر؟ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا،
आगे आगे देखिए होता है क्या। तो शकील भाई आने से पहले मैं ये सोच रहा मैं था, समझा सर अभी आप बैग से मंजन वंजन निकाल के बेचेंगे। बहुत हंसाया आपने। इसी तरीके से आप स्टेज पर भी लोगों को हंसाते हैं, उनके दुख दर्द को दूर करते हैं, मजा आता है। लेकिन इस कोरोना के हालात में जब मैं आर्टिस्टों को देखता हूं, उनके घर के चूल्हे बंद हैं, तो मुझे यकीन जानिए मुझे बहुत दुख होता सर अभी तो आप भी अताब में आए हुए हैं, जो कंडीशन चल रही है। जी जी बस इंशाल्लाह आपके तवज्जुह से ये हमारे भाई बैठे हैं, इनके तवज्जुह से ये इनकी बहन बैठी है, मेरा मतलब है ये आर्टिस्ट बैठी हैं, इनके तवज्जुह से हम कोशिश करेंगे कि फनकारों का जो ये काम है हंसना हंसाना ये शुरू हो, चलता रहे ये कार्य। सर कहाँ से चलेगा? आज तो असेंबली में आपकी सुनी लोगों ने, मैंने खुद असेंबली का इजलास देखा आज। नहीं बोलते रहे आप कुछ कोई सुने ना सुने, हमने अपनी बात आवाम तक पहुंचानी। थैंक यू वेरी मच। महक नूर जी बाजार से मुझे लग रहा है भी परेशान है माशाल्लाह आप, और जब 5.5-6 महीने हो गए हैं जो सुनने में आया है कि जी स्टेज टीवी का फनकार बड़े परेशान है, खास तौर पे थिएटर के फनकार। वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है कि थिएटर के फनकार जो हैं वाकई इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं इस वक्त आपको बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल और खुश नज़र आ रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो इस वक्त मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये मेरा अपना ज़ाती ड्रेस नहीं है। अच्छा। ये चांद रात के हवाले से मैंने ज़रूर अपनी सिस्टर से लेकर के पहना है। क्यों? क्योंकि हम शोबीज़ की दुनिया का एक नाम है, तो जाहिर सी बात शो जरूरी है, अच्छा हमारे भी बिजनेस लगना के अंदर शो बहुत जरूरी है। डेफिनेटली हमें अच्छा भी लगना है, चाहे हमें कितने अपनी कितने हम परेशान presentation क्यों ना हो, दिखानी लेकिन है। लोगों के सामने हमने फ्रेश आना है, वेल ड्रेस होके आना है, ये मजबूरी है। अशरफ भाई बिल्कुल सही बात है। जी अशरफ भाई, अभी जैसे मैं बात कर रहा था ना तो रेम्बो साहब बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पे एक जो है ना संजीदगी थी। जी। अब आप लाफ्टर भूल गए भाई आपका जो टोन है ना, अब जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके चेहरे पे एक बहुत संजीदगी आ जाती है, वो बात ही नजर नहीं हम तो आती। ये भूल भाई, गए ये कि हम भूल गए। करते क्या थे, भूल गए हम कि तो हम ये आर्टिस्ट भूल गए। हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे लोगों की वजह से हम भूल गए कि हम आर्टिस्ट थे। अच्छा दूसरा मसला क्या हो रहा है कि देखें अभी एक फनकार या दो फनकार की बात नहीं है, कुछ फनकार तो चलो फाइनेंशियली बहुत साउंड है, कुछ थोड़ा सा गुजारा कर रहे हो हैं, जाता है। लेकिन जो छोटा फनकार है, जो आपका मीडियम फनकार है, जिसको आप कह लें कि हेल्पर के तौर पे साइड फनकार जो चल रहे होते हैं, छोटा फनकार तो जूनियर कोई भी नहीं फनकार जो है। हाँ जूनियर फनकार जिसे हम कह बिल्कुल। सकते हैं, तो वो फनकार तो बिल्कुल जो है ना बुरी हालत में है। सर उसका कोई दूसरा काम नहीं है ना। अब वो बेचारा कर नहीं सकता और मुश्किल में ये है कि वो अपनी खुददारी को भी जो है ना सामने नहीं ला नहीं सकता। देखिए कुरैशी वैसे आप हैं, वो अशरफ भाई हैं। कुरैशी साहब बात ये है कि जितने भी मसले मसाइल हैं, आपका जागना, आपका बोलना ये बहुत लेट हो जाता है। नहीं मैं पिछले 48 घंटे से जाग रहा हूँ शकील भाई, आप यकीन कीजिए सिर्फ आर्टिस्टों के लिए। यार आप 48 घंटे से जाग रहे हैं, आपने चोरी करनी है कहीं? 48 घंटों से क्या आप अपनी चारपाई में खटमल तलाश कर रहे हैं? नहीं क्या कर मैं रहा है? आर्ट्स काउंसिल गया, फ्लीट क्लब गया, मैंने कहा बुक कराऊं चले आपके 8 लिए। क्लब तो गए, फ्लीट क्लब क्यों गए? नहीं, मैंने कहा आपके लिए बुक कराऊं क्या? ताकि क्यों? कोई शो चली, शो हो, सही आप है। लोग वहां परफॉर्म करें SOPs के तहत वहां पर शो यही हो। तो चीख रहे हैं हम लोग, कैसे पीस के तहत हमारे थिएटर खोले जाएं, बिल्कुल। हमारे जो कॉन्सर्ट हैं, जो सर, फंक्शंस हैं, खोले जाएं। इनको कोई मदद नहीं चाहिए, इनके प्रोग्राम्स को जो है इजाजत दे दी जाए, बस। ये अपने आप ही रनिंग में आ जाएंगे। जी हाँ सर, देखिए पहले भी ये कहीं नहीं कहते हैं कि हमें कोई डोनेशन, हमें कोई इमदाद मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल सारे नहीं। फनकारों से, सीनियर फनकारों से, जूनियर फनकारों से बात करता हूं तो इस बात का रोना आते हैं कि भाई हमारा कोई प्राइवेट प्रोग्राम भी नहीं चल पा रहा, बिल्कुल कि कोई ऐसे ही। छोटे मोटे प्रोग्राम भी चले तो हम अपने मामलात को बेहतर तरीके से चला लेंगे। लोगों ने अपने घरों की शादियों को महदूद कर लिया है, अब उन महदूद अहाते में भी हम नहीं जाकर के परफॉर्म कर पा रहे, ये हमारे लिए बहुत बहुत दुख की मुश्किल है। बात ढूंढ है। के मरने का मुकाम है इसके लिए। किसके लिए? फिर अब आप मतलब नहीं, यार मैं- मेरे को एक बात बताएं शकील भाई, ये जिस तरह का ये कोरोना आया हुआ है, जो इतनी पाबंदियां लग गई हैं आर्टिस्टों पे, आर्टिस्ट परेशान सिर्फ हैं। आर्टिस्टों पे लगी है यार, सब पे लगी थी, सबके मसले हल हो हल हो गए, गए। सब अपने काम पे लग गए, रक्शे वाला रक्षा चला रहा, रेडी वाला, हम आर्टिस्ट क्या करें यार? देखिए, मुझे ये देखिए। बताइए। अच्छा ऐसा एक बात है, ठीक। हाँ। एक्टर आप भी कमाल के हैं कुरैशी साहब। हाँ बस मैं भी पहले थिएटर करता था। अब खान साहब तक हमारी बात क्यों नहीं, हमारी गुजारिशात जो फनकारों की क्यों नहीं पहुंचा सर, रहे? ये सदाबहार यार कैसे- ये फनकार सदाबहार हैं। आप देख लें कि इनकी हुकूमत का जो दौरानिया है वो इतना ही है जो एक बड़े फनकार का हो सकता है। एग्जैक्टली। वेरी गुड, अभी आप उसको बहुत अच्छी बात।
اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن شکیل بھائی اب یہ کیا کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے فرما دیا. آپ نے سنا جب ان کا انٹرو آپ کر رہے تھے تو اپنی آپ کی تکلیف انہوں نے بیان کر دی. تو یہ جو ان کے پاس جو یہ جو ہے نا ان کے پاس گر, یہ گر آپ کو میرے پاس جادوگر والا, جادوگر والا نہیں دیکھیے, ہم عوامی لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم یہ عوام کا درد سمجھتے ہیں اشرف بھائی. بہت اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں, سمجھتے جیسے ہیں. آپ نے نہیں میں آپ انٹروڈکشن کا میں درد کہا. بھی سمجھتا ہوں, جیسے یار آپ نے صرف لیڈیز کا introduction میں سمجھتے ہیں کہا. آپ, میل کا نہیں سمجھتے آپ درد, نہیں سمجھتا. ہمارے درد نہیں سمجھتے آپ. سمجھتا ہوں, آپ دیکھ, آپ ایک بات کہہ رہے ہیں شکیل بھائی کہ خان صاحب تک ہماری بات کیوں نہیں پہنچاتے. یار ہم بیٹھ کے ان کی باتیں سن لیتے ہیں, ہم جو ٹی وی پہ بول رہے تھے وہ نہیں پتا ان کو, نہیں پتا ہوگا کیا؟ پتا ہوتی سب پتا ہوتا ہے. ایک شکیل ایک بھائی بات کا پریشان پتا ہے. ہے, ایک بات کا پتا ہے. دیکھیے شکیل بھائی, میں ان تمام آرٹسٹوں کی موجودگی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ جو کابینہ کی میٹنگ ہوگی اس کے اندر میں اس ایشو کو اٹھاؤں گا. کیا اٹھائیں گے ایشو؟ کل عید ہے, کل عید ہے, ہم کیا کریں؟ عید کے بہت لیے زیادتی ہو گئی. یار وعدہ کیا تھا, فارم بھرے, آرٹسٹوں نے فارم انہوں نے بھرے, نہ قربانیاں کی ہیں, نہ بچوں کے لیے کپڑے لیے ہیں. میں پرسنلی میں جانتا ہوں ایسے فنکاروں کو ان کا کرایہ, ان کا اپنے گھر کا رینٹ کا بھی نہیں دے پا رہے. صحیح بات. آپ سروائیول کیسے کرے گا فنکار؟ آپ ایسے کیجئے, کل عید ہے, آئیے گوشت لے جائیے. بس گوشت تو ماشاءاللہ اشرف بھائی جیسے لوگ اچھے لوگ ہیں, ہم نے کیا دکان کھولنی ہے اس کی؟ اب نہیں دیکھیے, کوشش کر سکتے ہیں. گوشت پہن لے کیا ہم اپنے بچوں کو گوشت کے کپڑے سلوائیں؟ سمجھے نہیں آپ, ابھی آگے انشاءاللہ اچھا وقت آ رہا ہے شکیل بھائی. 5.5 مہینے ہونے والے ہیں, بس آپ کا تو آ گیا ہے, آپ لوگوں کا اچھا وقت آ گیا. تھوڑا سا انتظار کیجئے, تھوڑا سا کتنا انتظار کریں. ہر چیز پہ آپ لوگوں نے ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیے, ایون کہ خواتین کے میک اپ تک کو نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے. دیکھیں یہ بڑی بات اچھی ڈسکس کی, خواتین کے میک اپ پہ ٹیکس لگا دیا. بھائی جان آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر چیز پہ ٹیکس ہوئی, اس پہ بھی کہتے ہیں گھبرائے نہیں, آپ لوگ کہتے ہیں. بالکل, میں تو کہہ رہا ہوں آپ گھبرانے پہ ٹیکس لگا دیں, لوگ گھبرائیں گے بھی نہیں ڈر سے. سانس لیتا ہے انسان, اس پہ بھی لگا دیں. دھوپ آتے گھر میں, اس پہ بھی لگا دیں. لگا دیں. انسان چلتا پھرتا ہے باہر روڈوں پہ, اس پہ بھی ٹیکس لگا دیکھیے, دیں. یہ پچھلی 30 سالوں کی جو حکومت ہے, بس یہی تو بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. سب نئے آنے والے لوگ ہیں. تھوڑا سا احساس کر لیں, یقین کریں یہ فنکار آپ کو دوسری زندگی دے دیں گے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ پھر آپ کا وقت آ جائے گا. یہ فنکار ہی ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کو زندہ رکھا ہوا ہے, اس پبلک کو یہاں کے لافٹر سے, اپنے احساس سے اپنی بات کو اس طرح سے کنوے کرتے ہیں کہ معاشرے میں بات پہنچتی ہے. بالکل. اور خدا کے لیے کچھ اس طرح سے کوئی ان کا پروگرام کرتے ہیں, کوئی ایسا موٹیویشن کے ساتھ کوئی چیزیں ان کو الاؤ کر دیں کہ یہ اپنی دال دلیے کی سر سفیر ہوتا فنکار. سر ہم وعدہ کرتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں, جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم پوچھا لگائیں گے. آپ ایک کام کیجئے, آپ لوگ اپنی جو ڈیمانڈ ہے, جو شرائط ہے, وہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو پروگرامز کے لیے الاؤ کر دیا جائے. بالکل, ہمیں ضرورت نہیں ہوگی آپ کے آگے گڑگڑانے کی, بولنے کی, جو آگے نا تو آپ لوگ کی منتیں کرنا پڑتی ہے, فارم بھر دو, ڈیٹا دے دو. اس معاملے میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں جی آرٹ کونسل آف کراچی کے صدر جناب احمد شاہ صاحب, جنہوں نے کلیپ ہونے چاہیے احمد شاہ صاحب کے لیے, جنہوں نے فنکاروں کے لیے اتنا سوچا, اور مسلسل راشن بھی, ہر ویک میں راشن بھی بڑھ رہے ہیں, بالکل ایسا ہے نا, اور اس کے علاوہ فائنینشلی بھی انہوں نے پرابلم شروع میں حل کی. لیکن اور اس کے علاوہ سر ہاں دیکھیں, اب شکیل صدیقی بھائی وہ لگے ہوئے ہیں, شکیل بھائی ہر آرٹسٹ نے رؤف لالا لگے ہوئے خود کہا, ہیں, ذاکر مستانہ, پرویز صدیقی, یہ سب لگے ہوئے ہیں. شکیل بھائی نہیں ہر آرٹسٹ نے خود کرا ہے, شکیل صدیقی ہوں, رؤف لالا ہوں, پرویز صدیقی ہوں, ذاکر مستانہ, شکیل شاہ ہو یا عامر ریمبو ہو یا مہک ہو, اپنے تحت آپ خود آرٹسٹوں کو گھر گئے ہیں, ان کو دے کر آئے. ہم کسی آرٹسٹ کو سامنے نہیں لائے, کسی نے جو مدد کی وہ ہم خود گئے, ہم نے لوگوں کو دیا ہے, پس پردہ رکھا ہے. آرٹسٹوں کی جو عزت نفس ہے وہ مجنون. یار ہم پتہ ہے اب آرٹسٹ ہم چاہتے ہیں آ گئے نا, پریشان ہو, عزت نفس صحیح کہہ رہی ہیں, وہ مجنون نہ ہو, مجنون نہ ہو, مجنون نہیں صحیح کہہ رہے, مجنون. ایک بات ہو تو مجنون. تھینک یو ویری مچ اکشے بھائی, اس بات کنٹینیو کریں گے, بریک کا ٹائم آ گیا. خواتین حضرات کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ہمارا پروگرام جس کا نام ہے سب چلتا ہے, بس یوں گئے یوں ہے, چھوٹا سا بریک. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک جی, آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے سب چلتا ہے. اور ہمیشہ کی طرح ٹاپک جب اس سے پہلے ڈسکس ہو رہی تھی فنکاروں کے مسائل اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے, کس کے پاس ہو سکتا ہے. جی آپ کیا ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں دیکھیے شاہ صاحب, دیکھ ہی رہے. آپ مجھے ذرا غور سے دیکھیں. اب کیا ہوگا, کیا ہوا, دیکھ لیے. نہیں, آپ کی
जितने भी मसाइल हैं उसके हल की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको बताएं हमारे साथ क्या मसाइल है? आप बोल रहे हैं ना आपके साथ जितने मसाइल, एक मसाइल बताएं क्या है हमारा? खाने पीने का और किराया, घर का किराया, बिजली का बिल है, बच्चों की तालीम है, गैस का बिल है, हाँ, और जितने भी हैं तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं आपके क्या मसले मसाइल हैं? बार बार क्यों पूछते हैं आप? इसको क्या हो गया? बस जज्बात अरे यार, पागल यार, हो गया इंसान, गुस्सा मसला क्यों हो ये गया? रबड़ के आदमी, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे। रबड़ के आदमी, रबड़ का ही लग रहा है मुझे आदमी, मैं गाड़ी कोई को असर ही नहीं हो रहा तुम पे। मैं गार्ड को बुलवाऊं? हाँ गाड़ी पे यार इन्होंने अभी कहा कि मुझे गौर से देखें, मुझे तो कुछ कुछ डाउट हो रहा है। है ना? जी, जी, किस वो बात अपना की? वो NIC देना मुझे, वो राशन का एक जरा जुगाड़ आई है। ये सारी बातें आपने इसी शो पे करनी थी। जुगाड़ आई है। नहीं मेरा मतलब है एक यार एक किसी के लिए किसी ने नहीं, कहा नहीं, है देखिए देने- देखिए आर्टिस्ट रेम्बो को साहब, देने के लिए। रेम्बो साहब, उनके राशन की फिक्र मत करें, वो मैं डलवा क्यों? देखिए देखिए, वो आपकी माधुरी खाला की साहब, लड़की है, उन्हीं को वो डलवा मैंने देंगे। अपने लिए नहीं करवाया। फिर? देखिए आर्टिस्टों के लिए जो फंड पास हुआ है ना, और उसके बिहाफ पर हमें मिल रहा है, तो हम किसी और को दे देंगे, वो मेरे घर नहीं जाएगा। देखिए हाँ, देखिए उनके घर देखिए की बात। शाह साहब, मैं वादा करता हूँ, साहब मैं तुम्हें तावीज नहीं देता हूँ। शाह साहब मैं वादा करता हूँ, आप सबकी मौजूदगी में जितनी फीमेल आर्टिस्ट है उनके राशन मेरे जिम्मे। ले बस क्या खूबसूरत। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे यार? यार खुदा की कसम, फीमेल आपने भी जो है ना कपड़े पहन लेने लेडीज के, शायद कुछ कर्म कर जाए। हालांकि वैसे आप- हमें आप लड़की बड़ा अच्छा बनते हैं, जरा कुछ कर तो दें। अरे वो तो हम स्टेज पे बनते ही हैं, लेकिन भाई हमें ना बनाओ, कब तक बनाओगे नहीं, यार? देखिए ना, देखो फिर- खुदा की कसम इतने उकता गए हैं और हर बात आपकी सबकी झूठ लगती है। जो भी कहते हैं ना हम आपके मसले हल ऐसे कर ही। देंगे, हम आपको ऐसे पैसे ही। दे देंगे, हम दिलवा ज्यादती देंगे, हो रही है, हम बहुत आपका ज्यादती। मसला हल कर देंगे, कोई कुछ नहीं सर, करता। नहीं, आर्टिस्ट खुद करेगा शकील भाई। भाई मुगेम्बो साहब, मुझे रैम्बो, तुम्हें तो नाम भी नहीं पता आर्टिस्टों के यार, तुम क्या मसले हल करोगे? नहीं, मैं कोशिश कर, अच्छा आप वो ड्रामे कैंपो- देखते हो, ड्रामे फिल्में वगैरह जी जी, कौन पसंद है आपको? ये लेडीज में होता है, हाँ, फीमेल एक्ट्रेस, फिल्म स्टार, फिल्म स्टार मुसर्रत रीमा शाहीन। अच्छी है रीमा। जी, और मीरा भी अच्छी है, अच्छा, और वो जो आजकल एक आ रही है अपना, मैं भी शयाद। ठीक है, हैं? ठीक है, गुजारा है। चल अच्छा, सबके नाम आप जानते हो। हाँ। स्टेज पे कौन पसंद है आपको? स्टेज पे वो जो कमांडो का रोल किया था ना जिसने, ये कौन है? ये कौन है? सिल्वर स्टालोन, वो कराची स्टेज का के- है? जी, फिर यार ये कौन आदमी स्टेज के आर्टिस्टों अरे को नहीं स्टेज के जानते? आर्टिस्ट को आप नहीं जानते? नहीं, वो इंटरनेशनल बात कर रहे हैं। थिएटर की फिल्मकार को आप नहीं थिएटर को- जानते? थिएटर आपको को- रीमा याद है? आपको सर जब आप जानते ही नहीं किसी को, तो आप किसकी हेल्प करेंगे? ये तो हमारी सियासत है, हम जिसको जानते नहीं हम उसकी भी मदद करते हैं। क्या? अच्छा ये सर ये उसकी बात तो करते है, ही आज नहीं। आज क्रचेस आप यहाँ मौजूद हैं, तो क्योंकि कल तो सुबह इस बार ईद है, तो मैं इनकी तरफ से अनाउंस करूंगा, यहाँ जाते जाते सबको 10-20 हजार रुपए ये ईदी भी देके जाएंगे। हाँ जी 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 देखिए लाइव लेंगे आपसे हम जी, यहाँ से कैमरे के सामने, तो सर आप देना। सर अब आप ये मत कह दीजिएगा कि सॉरी मैं जिस हाँ। नहीं, बैग में क्या है, पैसे उसका को नहीं। भूल आया हूँ। Sorry Please, नहीं। ऐसा नहीं कहिएगा। नहीं, ऐसा मैं नहीं ऐसा कहेंगे, ये कहेंगे दरखास्त लिख के दें, अमल होगा, देखेंगे, नहीं। पास करवाएंगे, फिर नहीं, आपको नहीं, ईदी नहीं, देंगे। कोई दरखास्त नहीं, हाँ। आपकी बात मेरी आंखों हाँ, पर, शुक्रिया। मैं कबूल करता हूँ, सबको मैं चेक दे दूंगा। नहीं नहीं ले। हम बाद में तो चेक करते क्या फिर। बात है? कैश ही नहीं होते आपके अरे, चेक। मैं तो पुलिस साहब। पेमेंट भी जब कहीं जाती हूँ ना कैश लेती हूँ, मैं यहाँ पर भी कैश ही लूंगी, नो चेक। कितनी पेमेंट है आपकी? ऑलमोस्ट 20,000। 20। देख। वाह, 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 बाबा। बाबा, 20,000 देना इनको। है? अच्छा सर मेरी है तकरीबन 30-35 हजार रुपए। 30-35? जी जी जी। नहीं, मैं खुदा बख्श आप को बुलाऊं। देख लें ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद की ये सारी बातें होंगी। आपकी अभी जो बात है सारे 4 फनकार की बात नहीं है। ये बस पूरे, ये हाँ। आपके 700-800 फनकार ऐसे हैं जो बेचारे बहुत बुरी हालत में हैं। शकील भाई, इनसे उनकी ये फाइनेंशियल पूछें पोजीशन बहुत खराब है कि हमारे- आपके 4 फनकार या 3 फनकार का तो मसला नहीं है ये। सब फनकारों का मसला है। देखिए मैं कह रहा हूँ 700-800 फनकार है आपका स्टेज का, लाहौर का है, मुल्तान का है, हैदराबाद का, कराची का, आपके हाँ, छोटे आप- बड़े शहर जितने फैसलाबाद का, ये इतना सारा फनकार जो आपका बैठा हुआ है और तमाम का तमाम बेरोजगार। मुझे एक बात बताएं, अभी एहतिजाज किया लाहौर के आर्टिस्टों ने, जी हाँ। आपने देखा शर्ट वर्ट उतार के, जी हाँ, कोई असर हुआ इन पे? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं। हम देखिए, क्या करें, वो- अब आप भी शर्ट उतार आप भी ली। उतारे शर्ट अपनी। क्यों? है आप बोल रहे हैं आप हमारे साथ हैं, आप हमारे। अरे आप आंखों से चर्बी उतार ले तो हम नजर आ जाएं आपको। आप शर्ट पर उतारे हाँ। और सिर्फ पैंट पहने और रोटी की दालें गले के अंदर। नहीं शाह साहब, मैं अंदर से बहुत बुरा निकलूंगा। आप बाहर से भी बहुत बुरे हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है रोजी नहीं, रोटी देखिए। यार।
इनकी हाथ में देती, ये लोग भूखा मार देते हैं, नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। नहीं नहीं राशन को सड़ाकर कीड़े पड़ जाते, लेकिन ये लोग ऐसे लोग देते नहीं किसी को। नहीं, देखिए महक, मैं आपको एक बात बताऊं, इनका याद हो गया, मैं मोगेम्बो, वो महक, 1 मिनट में ये नाम याद आया। पहले जैसा मुंह तो लेकर आया। नहीं देखिए, मेरा मतलब है शाह साहब, देखें शाह साहब, मैं आपको एक बात, शाह साहब मैं हूँ, वो अशरफ भाई हैं, अशरफ साहब हैं। अशरफ नहीं, भाई, नहीं, वो- देखिए उनका एक ही नाम याद है। हमारी पार्टी का मंशूर यही है कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार दो, जितने भी गरीब हैं उनको रोटी, कपड़ा और देखें, मकान वो दो। पॉलिटिकल बयान जो है वो आपकी जमात का या दूसरी जमातों से इनको कोई गर्ज नहीं है। इनका मसला ये है कि इनको सर्वाइवल होने के लिए अलाउ कर दिया जाए, हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मुतालबा है। बाकी जो 4-5 महीने के अंदर जो आपने 1 अरब 1.5 अरब रुपए का जो फंड रखा हुआ है आपके फेडरल, जी बिल्कुल, उसमें कोई इनको कंट्रीब्यूशन का सिलसिला, इनको डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू करवा कब करेंगे, कब? ताकि ये लोग कुछ न कुछ अपने चेहरे पे सुर्खी लाएं। बहुत मुश्किल हालात में है, बीमारियां हैं, बेचारों के साथ प्रॉब्लम है, बड़े लोगों का मसला है, बुजुर्ग इनके साथ हैं, बच्चे इनके साथ हैं, फैमिली वाले लोग हैं, फैमिली है, फैमिली इतना है। ज्यादा और जैसा कि आपने मुश्किल में कहा डाल कि रखा है। हमारा ये मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान दो, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आप लोग ये कह रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान गरीब से छीन लो, छीन लो, ऐसा छीन कर रहे छीन तो लिया है, सर, छीन छीन तो तो लिया लिया। है क्या यार। बात है, वाह वाह, क्या खूब छीना है आपने। अच्छा एक बात, कल आप ईद है, कल ईद है, क्या कर रहे हैं आप? कुर्बानी पहले मैंने अपना बकरा गिराना है। गिराना है। नहीं मेरा बकरा पहले तो कितने आपने ऊपर से काट लिए बकरे, नहीं, आर्टिस्टों का हक खा गए। सर मैं तो सुने आप तो कोई गाय लाएंगे। ठीक ठाक पैसे का जानवर लिए। अभी तो नून बकरे आप तो बहुत सारे खा रहे हैं अभी। हाँ नहीं तो पीछे बढ़े। तकरीबन 4 करोड़ के जानवर लिए हैं हैं। जी। अल्लाह, 4 करोड़ के जानवर। इस दफा कम लिए, लास्ट टाइम बहुत लिए थे। इस दफा यार हल्का मुझे रखा तो है। लगता है इस बंदे ने मर के मुंह नहीं दिखाना होगा। नहीं दिखाना है, आपको दिखा के जाऊं। देखिए, आप कुर्बानी दे अपनी अना की, नहीं। जो हर वक्त मैं करती है। देखो जंबो साहब, आप मेरी बात- जम्बो, मैं लीटर की बोतल हूँ। अब कौन आदमी है ये आटे का बना हुआ? नहीं महक साहब, आप समझा, अरे मेक साहब, उसका नाम याद हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा तुम्हें? आप समझते यार ये इसी तरह से अब समझ में आया शकील भाई, जी। ये हमारी दरखास्त जो मेल की ना, वो लेके डब्बे में डालते, बत्ती बना के, बत्ती बना के। जेरे गौर औरतें जी होती- जी, मैं जी। आज बरमला कह रहा हूँ। आप देखो देख- आमिर, आमिर देखो तुम फीमेल के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। नहीं मैं उंगली नहीं, 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 मैं- नहीं, बात ये है, ये उठ देखें, कर रहे हैं, आपको नहीं। तवज्जो ये दे रहे हैं, मैं थोड़ी दे रहा हूं। ये ना करें, फिर टाइप की चीज ना करें। काश आप एक्टर होते, सर आप एक्टर होते। एक्टर नहीं है। क्या आपका एक्टर ये है, जब मुस्तनद- तो असेंबली में हाँ। पहुंचे। हाँ ये मुस्तनद, बात मुस्तनद। है ना। मुस्तनद। क्या आपका एक्टर और आर्टिस्ट हाँ। गॉड गिफ्ट है, हर किसी को नहीं मिलता, ठीक, हर कोई नहीं बन जाता आर्टिस्ट। सही कहा आपने। ये फनकार लोग हैं। ये फनकार लोग हैं। क्या आपका जंगली हाँ, बिल्ली जैसा मुंह है हाँ। आपका? हम आर्टिस्ट हैं, आप फनकार हैं आप लोग। इसमें कोई और उसमें मीम लगा दूंगा मैं। फिर हाँ अभी बताए, कल सुबह ईद है, जी जी, क्या करें हम? कहाँ जाएं, किधर जाएं, हाँ। सर अपनी हुकूमत को रिक्वेस्ट करते किधर हैं। जाएं? हमारी ईद हमारी पे अपनी हमारी तो हुकूमत है, कुर्बानी इसको किया request करते थे, करते अब तो हिस्सा भी नहीं ले सकते। मैंने तो हिस्से में हिस्सा लिया है, हैं? हाय, हाय। हिस्से में हिस्सा लिया हाय, है। हाय। एक बंदे ने हिस्सा लिया है, मैंने कहा क्या किया? कह रहा मैंने हिस्सा लिया है। मैंने कहा "इससे मेरा भी हिस्सा डाल दे"। उसके हिस्से में हिस्सा डाले, बताओ ये अब ये देखो, उसके ये ये वक्त आ सोच गया है। है। मस्कत रॉयल इनक्लू प्रोजेक्ट है, शानदार प्रोजेक्ट है यहाँ, और ये हब में है, और हब वालों के लिए खुशखबरी है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप मुद्दत तो याद रखेंगे। और याद रखिए, इस शहर के अंदर या हब हो या कोई सर पाकिस्तान जिसका अपना घर है कुर्रा ज़मीन पे, वही कामयाब है। तो ये खूबसूरत सा प्रोजेक्ट हब पे चल रहा है, और हम चाहते हैं कि आप सब हब वाले इसको देखें और इसको अपने हिसाब से वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट फ्लैट्स बुक करवाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंट्रली एयर कंडीशन है ये हब के अंदर। ये कराची से हमारे नामी गिरामी बिल्डर हमारे दोस्त हैं अलमदनी इंटरप्राइजेस के, वो इसको जो है प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा, उसको वेरी गुड वेरी गुड, बना रहे हैं। जबरदस्त। जबरदस्त, बहुत अच्छे। आइए प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट हमने चेंज किया है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हुए हैं, और यहाँ पर हमने थोड़े चेंज किए, अपने करेक्टर बिठाए हैं। जैसे कुरैशी साहब कह रहे थे कि जी एक्टर जो हैं, तो हमने कहा बाकायदा इनको एज ए एक्टर क्यों ना बिठाया जाए, और इनके साथ हमने ज्वाइन किया है। पहले तो मैडम बड़े अच्छी फिल्म स्टार जीरा। I'm not Jira. My name is Meera.
मीरा 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 बहुत मेरा मेरा है जी नहीं, मीरा। मीरा Don't call me Meera. My name is Meera. माशाल्लाह अच्छी लगी बहुत खूबसूरत हैं आप हैं? माशाल्लाह Thank you for the compliment. सुनिए और इनके साथ जो बैठे हुए जी अभी ज्वाइन किया है हमें बहुत अच्छे हमारे मेकअप आर्टिस्ट और बहुत अच्छे हमारे ग्लैमराइज आर्टिस्ट पप्पी जी पप्पी 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 हैं? पप्पी नाम है सर, नाम है ये ऑफर पप्पी भी है, लेने- समझते नहीं आप पप्पी पप्पी ये कौन सी वाली पप्पी है मतलब नाम है जो नाम निकनेम होता है ना पप्पी हाँ। जैकी हाँ ये तो कुछ Bloody stupid. ये तो- Puppy, कोई नाम होता है क्या? ये- तो शॉर्ट में रख लेते किस है का जी का किस का नहीं बल्कि किस किस का किस पप्पी पप्पी मेरा नाम है अच्छा ये बताए आपस की बातें नाम कुत्तों के होते हैं तो आप रख लें ये नहीं मेरा मतलब है अपने कुत्ते का कुत्ते का नाम अपने कुत्ते का नाम आप रख लें आपका नंबर क्या है जी 0300 आपके लिए 200 जी नहीं मैं पता है परेशान है और हमारा भी काम नहीं चल रहा हाँ। कसम से आपको मैं बताऊं हमारा ए काम भाईजान ये एसओपीज का ख्याल रखिए ये क्या होता है एसओपी फासला रखें सोशल हाँ। डिस्टेंस इसकी वजह से तो हमारा कितना नुकसान हो गया ना Oh my God. सोशल डिस्टेंस क्या बात है। वैसे सर आपने ये जो प्रोजेक्ट है हाँ। इसके लिए अभी तक कोई मॉडल फाइनलिज्म तो नहीं की ना? नहीं की है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पप्पी फाइनल हो जाए नहीं, कसम से आप- मेरी पब्लिश इतने बदनाम हो जाओगे मेरा मतलब इतने मशहूर हो जाएंगे इनकी जो है ये Project। प्रोजेक्ट हाँ मुझे आप ले मॉडल नहीं मिस मेरा हर फ्लैट में जाके मैं इनका, जो डांस इनका इंटरनेशनल फेम है और इनके नाम से जो हमारा प्रोजेक्ट चले एक ऐसे ऐसे कर लेते Thank हैं you. जरा इंट्रो दीजिए कि आप इस प्रोजेक्ट में आइए हाँ। आपकी अपनी जिंदगी बनाइए आइए मैं कह रही हूँ आपको आइए अगर आप दिखाएं जरा सा वो किस तरह से आप जी। इसको हाँ। आप प्रोजेक्ट करेंगे हमारे। प्रोजेक्ट आपका क्या नाम है आपके प्रोजेक्ट का मस्त मस्कत रॉयल कहते चले आप आप उसको प्रोजेक्ट कीजिए आप तो कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कैमरा सर आपका वो वो कैमरा वाला कैमरा हाँ जी जी घर जाते हुए ले जाऊं है हाँ आपके साथ कैमरामैन भी जाएगा साथ अब स्टिल अपनी जगह पे खड़े होके जी 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम म्यार में बुलंद है हर कमरा कॉर्नर कमरा बिल्कुल सेपरेट अकेली मिलूंगी वहां में आप है What do you mean by that? भाई मैं डील करूंगी बताऊंगी इनको फ्लैट के बारे में फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में ऐसी क्या बात है सर इस तरह तो आई एम सो सॉरी आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगा। नहीं आप कैसे ऐसे चले नहीं माशाल्लाह इनके जितने प्रोजेक्ट अब तक है मैं अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा जो है हाँ। केयर कर रहा होता हूँ कि मुझे अपने जो क्लाइंट्स हैं बड़े रिस्पेक्टेबल होते हैं आपको क्या पता इस तरह का मिजाज नहीं रखते नहीं और दूसरी बात ये तो एक फनी बात थी लेकिन भाई आप इसकी ये मॉडलिंग नहीं कर सकते किसने आपको बताया कि नहीं मेरा मतलब है बेरोजगार तो हो गए तो यही अच्छा करें अच्छा ना। अच्छा सर इसलिए कह रहे हैं ना मेकअप बेचारे करते थे हमें तो कहीं किसी काम से तो लगाए ना देखिए अब मैं देखिए रक्षा चलाती हुई अच्छी लगूंगी हैं? रक्षा चलाते यूं कैसे चलाओगे रक्षा बैठी वो पीछे हाँ आगे बैठेगा वो तो फिर ना सवारी तो आगे बैठेगी हम तो इतने मजबूर है कुछ कर भी नहीं सकते बहुत ये क्या ऐसे- करें नंबर क्या है आपका कोई नंबर नहीं मैंने अपना फोन ही बंद करा दिया देखिए शाह साहब जी। इनको मैं सर ये भी आर्टिस्ट हैं बेचारे हाँ। इनको मैं अपने प्रोजेक्ट में मॉडल की ऑफर करता हूँ आपका क्या प्रोजेक्ट है ढोल की सच क्या ढोल की है जी सर आपका क्या प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है प्रोग्राम क्या है प्रो- कल का जी SOPs का ख्याल रखें। एसओपी से ख्याल रखें गलत कर रहे हैं नुकसान तो करवाएंगे आप अच्छा ये बड़ी अच्छी बात की सोशल Distance। डिस्टेंस का सबसे ज्यादा नुकसान तो इन लोगों को हमें हुआ है ना है ना आपको क्या पता कैसे सर ये बीमारी चली कोरोना एक दूसरे से गले भी नहीं मिल सकते प्यार मोहब्बत नहीं बांट सकते पिछले अच्छा कल साल जो भी- ईद है कल सुबह ईद है तो क्या हम उसमें भी सोशल डिस्टेंस रखें अशरफ भाई ईद ना मिलें जो ईद की एक रिवायत है खास देखें अभी जैसे हम बात करते हैं ना सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं जी, जी। बेचारा कल वो जो बकरी को काटेगा तो उसका सोशल डिस्टेंस कहाँ जाएगा हाँ आप जब गोश्त बांटने निकलेंगे लोगों को तो बहुत ज्यादा केयर करेंगे फिर भी आपके इर्द गिर्द तो लोगों का एक मुजमा तो रहेगा ईद में चलें आप ठीक है नमाज के लिए जाएंगे थोड़ा सोशल डिस्टेंस का आप कर लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी सकाफत हमारी जो कस्टम हमारी रिवायतें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किस तरीके से ये डामाडोल सा हो जाएगा मामला क्योंकि हम लोग अपनी रिवायतों को छोड़ नहीं पाते लेकिन- अपने अजीजों लेकिन- में अपने लोगों में अभी ये प्रायोरिटी तो बहुत ज्यादा है सिंसियरिटी से हमें देखा जाए तो इसको मैयार को तो हमें रखना है अब क्या ताकि- होगा सर बकरीद के बाद गाय का गोश्त जमा करके क्या लोगों घर में फेंक के जाएंगे ये लो तुम्हारा हिस्सा ये तुम्हारा डिस्टेंस हिस्सा। रख के
डिस्टेंस रखते Oh हैं। my God, कितना नुकसान हो रहा है ना stupid. मुझे। सोशल डिस्टेंस क्या कर रहे हैं आप तो ऐसी बातें ना करें। अच्छा मजे की बात है, अगर इनकी जगह ये यहाँ बैठी होती तब सोशल डिस्टेंस नहीं होता आपका। हाँ, देखिए वो अपना टेस्ट करा के आई हैं, क्या हमें बात पता है, है। क्या टेस्ट- बात है। सर मैं अभी अंदर टेस्ट पे याद आया, आपको कैसे पता कि मैं अपना टेस्ट करवा के आई देखिए, हूँ? मैं आपकी कौन सी क्या टेस्ट करा के आई laboratory है? कोरोना का टेस्ट है, कोरोना टेस्ट। देखिए अरे आपकी लम्हा बलम्हा सब जितनी भी रिपोर्टें हैं वो हमारे पास Oh हैं। my मेरी क्या रिपोर्ट आई? God. नेगेटिव। ने वो क्या चेक करते हैं, यूं करके वो टेम्परेचर कहाँ लगाते हैं? माथे पे टेम्परेचर अल्लाह कितने शैतान लोग हैं वो लोग ना, कहाँ लगा दिया बता ही नहीं रहे। है? माथे 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 पे लगाया ना, अच्छा माथे पे लगाया मैंने जाता कहा है। माथे पे सोने की बिंदी लग। आप तो समझते ना हर बात। प्लीज आप तो देखिए। सर ये आपके गुजारा कैसे हो रहा है इन जो ये लॉकडाउन के अंदर? हाँ। आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, अच्छे डांसर भी हैं आप, तो ये कैसे कहाँ नाच रही हैं आजकल? जी सर कहाँ नाचना हो रहा है हमारा? लॉकडाउन तो है लेकिन हमने लॉक नहीं लगाए हुए। कोई भी हमारे घर पे आ सकता है हमारी इमदाद के लिए, लेकिन हमारी तो कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा ना। अब मेकअप भी नहीं करवाते अब तुम तो लोग। क्यों? हमें जैसे हमें ही सारा कोरोना हो गया, हम पे सारे इल्जाम आते क्योंकि हम घूमते हैं ना बाहर, बहुत गाड़ियों में जाते हैं। तो कुरैशी साहब कोई तकरीब हो घर में बुलाए ना इनको। हाँ, बाबा बच्चे की छठी होगी तो बुलाएंगे। तो बच्चे की छठी पे नहीं नाचते। सर अभी कुछ भी हमारा बच्चे की छुट्टी होने वाले चांसेस हैं। पोते पोतियां नवासे अच्छा अच्छा नवासे। अच्छा सर थोड़ा सा कंफ्यूजन Oh हो गया। my God, confused. नहीं नहीं माशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्या हो गया? अस्तगफिरुल्लाह। जी जी देखिए देखिए अच्छा ये इल्ला मसले लिल्लाह। कब हल होंगे हमारे? प्रॉब्लम ये जो चल रही है ये कब खत्म होगा इस मुल्क से? आप तो खुद एक प्रॉब्लम है। तो ये हल कर दें। सर ये भी इंसान है, अल्लाह की मखलूक है। मैंने बिल्कुल। कब कहा है कि ये इंसान नहीं है, ये है इंसान। हाँ। लेकिन इनके ऊपर तो खुद कुदरत ने केस किया हुआ है। ये ये क्या बात? देखिए ये बेचारे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, अच्छे कोरियोग्राफर होते हैं ये, तो इनके भी रोटी रोटी लगी लेकिन होती इनके है। बगैर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल बेरौनकी है। बिल्कुल। ये लोग ना हो तो हमारे चांद जैसे चेहरों को और मजीद खूबसूरत कौन बनाएगा? इनके बाल भी मैं ठीक करता हूँ। बिल्कुल। जी? क्या बात है। बाल बची हैं। अरे ड्राइव में करंट आ गया था, मैं कर रहा था। अच्छा। तो इसी तरह बाल सर आपको अगर मेकअप सही करवाना हो तो मैं इनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं आप। मैं आपकी तबीयत भी ठीक कर दूंगा। आप समझ नहीं रहे सोशल डिस्टेंस। मुझे। हम यहीं तो मार खा रहे हैं। सर कि कब मसले हल होंगे? आपने पाकिस्तान के बाहर के लोगों के बहुत से लोगों के आपने मेकअप किए होंगे ना, ये ये से- जो पुराने वक्तों की मैंने तो पैकअप भी कर दिए कई लोग। मेकअप यानी कि आपके मेकअप के बाद पैकअप हो गया। वो कोई होते हैं। अच्छा कैसी अरे बात? सोशल डिस्टेंस का कोई फायदा है सर? आबादी तो बढ़ रही है। कोई फायदा नहीं। आप देखें मेजॉरिटी, ये आप हिस्ट्री उठा करके देखिएगा, इन लॉकडाउन के दिनों में ही बहुत ज्यादा बच्चों की पैदाइशें होंगी। आप क्या दाई का सही। काम भी करती हैं? Oh my God! क्या हो ये गया? ये तो अभी जाके बाहर अमेरिका में फंस गई थी ये। किससे? अब सबका नाम बताऊं मैं नहीं, क्या? मेरा मतलब फंस है गई। प्रॉब्लम में फंस गई प्रॉब्लम में फंस थी। गई वहाँ थी। इतनी इन्होंने वीडियो डाली जिससे बहुत नहीं वो भी परेशान। झूठी वीडियो थी, वो भी आपकी झूठी वीडियो थी नहीं, कि मैं ऐसे हाँ, प्रॉब्लम में हूँ, ये जी। बाद में पता चला वहाँ एंजॉय कर रही हैं। बिल्कुल। फिर आप बोले ऐसी बातें भी नहीं नहीं, ये करेंगे, पब्लिसिटी का स्टाइल है ना। हाँ, ये तो publicity queen है भाई। नहीं कैसे देखिए काम इनका जैसे ही सोशल मीडिया पर आया कि ये मुसीबत में फंसी हुई है आपने तो टिकट मैंने भेज दी? जी बिल्कुल आपने एम्बेसी एयरप्लेन से- भेज दिया? नहीं, मैंने एम्बेसी से राब्ता किया वहां अमेरिका में। मैंने कहा हमारी एक आर्टिस्ट हैं, एक खूबसूरत, उनको देखिए, उनके मसले हल कीजिए। तो हमने वो मसले हल कराए। अच्छा तो जी। वो मसले आपने हल कराए जी, जी। थे। Oh हाँ, my God! पता है क्या तो- ये मसले हल करा दे। ये बारिश में लोग परेशान बैठे हैं, जी, जी। जो घरों में घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनके मसले कौन हल कराएगा? वो अल्लाह ही कराएगा। मेरा सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देंगे तो बस आपको अल्लाह ने यहाँ पे जिम्मेदारियां देके भेजा दुनिया के अंदर। देखिए ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पाइपलाइनें बंद हैं। ये हमारी क्या बात जिम्मेदारी- करिए, आपकी जिम्मेदारी है। खुसरे कौम की अमानत खुसरा है। कौन? हैं? कौन खुसरा? नहीं, मैं बता रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी हूँ। आपकी नहीं नहीं, अवाम की हैसियत से बात अवाम कर की रहे हैं। हैसियत अवाम से। की हैसियत से। अवाम हमारी जिम्मेदारी है। तो ये ठीक है। ये मैं अवाम आवाम का नहीं हिस्सा हूँ, है मैं ना। क्या कलमी आम हूँ? नहीं तो देखिए कैसी बातें कर रही हैं आप।
آپ نہیں ماشاءاللہ یہ جو دیکھیں کراچی کو آپ سب جتنے بھی سیاستدانوں نے اس ملک کی جو بڑی پارٹیاں ہیں سب نے بھلا دیا ہے. یہ کراچی آپ پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. نہیں پورا نظام آپ کا جو ہے اس پورے کراچی کو ایسے بٹھا دیا ہے کہ سیلاب کی سی کیفیت ہو گئی. نہیں قدوسی صاحب ایسی بات نہیں ہے. قدوسی صاحب نہیں سر، اشرف صاحب. اشرف صاحب ایسی بات نہیں ہے. کراچی پر ہماری نظر ہے، بس وہ ہم نے نظر اس کے تک ہی ہے. مسئلے حل کرنے ہیں نظر اور ہے. انشاءاللہ کراچی پہ ارننگ ان کے کی لحاظ نظر سے. ہے. کراچی ارننگ والوں کے پہ نہیں لحاظ پڑ رہی سے، آپ کی ٹیکسز نظر. کے لحاظ اور سے. تو رہی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ سر میں بھی کراچی میں ہی آتا Thank you ہوں. very much. نہیں شاہ صاحب بات ساری سنجیدگی سے تھوڑی کر دوں کہ کراچی کا جو سب سے بڑے مسئلے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. دیکھیں یہاں سیوریج کا نظام اتنا گندا ہو رہا ہے، یہاں جو ہے صفائی ستھرائی کے معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں. پھر یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے آج کل کے جو آپس میں ان کی جو لڑائی جھگڑے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی میٹروپولیٹن شہر کی کوئی بات سنی نہیں جا رہی. اس شہر کا انٹرنیشنل شہر تھا، کسی 20 سال پہلے جا کے ہم دیکھتے ہیں اس شہر کو تو دنیا کے بڑے شہروں میں اور خوبصورت شہروں میں شمار ہوتا تھا. اب اس شہر کا کچرا ڈپو شہر ہو گیا. نہیں دیکھیے اور ہم شیرازی لوگ- صاحب میں ارے آپ اشرف صاحب، اشرف شیرازی بول رہے ہیں آپ. آپ مجھے کوئی بھی نام دے دیں لیکن اس شہر کے لیے جو لاوارث نہ کریں اس شہر کو. آپ نے فارن کا اتنے شرازہ مہربان. ہی بھی کر دیا. نہیں سمجھے نہیں. خدا کے لیے دیکھیے ہم کوشش کر یہ رہے ہیں فنڈ اور سے انشاءاللہ پانی آئندہ کا 5 سال مسئلہ. کے بعد جب ہم دوبارہ سلیکٹ ہو کر آئیں بس وہی گے بات. تو اس شہر کے مسئلے مسائل حل کرنے کی پپی صاحب، کوشش کریں گے. آپ کے یہاں بجلی آتی میں ہے تو آپ کے یہاں آپ کو- بجلی آتی ہے ہمارے بندے نہیں آتے. لیکن آپ کے یہاں پانی میرا آتا ہے. مطلب ہے اتنا سوشل ڈسٹینس ہے. بس چیک بجلی ہوگی تو آئیں گے، بندے ہی چیک آ کے کرتے ہیں نا میٹر وغیرہ. کہاں سے آئیں گے؟ صرف پانی- بل آتے ہیں. میں آپ بل کو آتے بتا ہیں، دوں دیکھیں. بجلی اور نہیں بل بھی آتی. ایسے آتے ہیں کہ بلا جاتے ہیں یہ. ہاں میں گرمی قریشی سے. صاحب اب آپ یہ سیاست ویاست کو چھوڑ دیں. اللہ. میری مانے تو بس آپ فلم انڈسٹری میں آ جائیں. جی اس سے آپ زیادہ کیا کما کہتے ہیں؟ لیتے ہیں نا فلم انڈسٹری سے کیا کریں گے. ہاں. بس ایز اے پروڈیوسر نہیں پروڈیوسر نہیں، ایسے والد صاحب. ہیرو آنے کے قابل تو اب آپ بچے ہی نہیں نہیں اب تو ایسے جو ہیرو ہوتے ہیں وہ تامل فلموں میں آتے ہیں. اتنی عمر مارے نا انگڑ یا راج قلعہ دیکھیے دیکھیے آپ فلم میں ہیرو آئے تو میں آپ کے ساتھ ہیروئن. ہے. پکی رہنے دیں، بڑا ڈسٹنس رکھیں. خواتین حضرات، یہ بات صرف آپ کی تفریح تباہ کے لیے تھی. یہاں پر بیٹھ کے ہم نے جو گفتگو کی، کاش گورنمنٹ پہ اب ارباب اقتدار پہ اس کی نظر پڑ جائے. آج کا پروگرام تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے مسائل، فنکاروں کے مسائل اجاگر کریں، تھوڑی سنجیدگی آ دو سنجیدگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے کل عید ہے تو آپ سب کو ایک ہماری پوری ٹیم کی جانب سے عید مبارک. عید مبارک. اور دوسرا یہ کہ مستحقین تک گوشت پہنچائیے. عید میں اپنے ان مستحق لوگوں کو مت بھولیے جو آپ کے منتظر ہیں. بس یہ کیجئے اور ہم فنکاروں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی مسئلے مسائل حل کرے اور ہم اسی طریقے سے آئندہ آپ کو ہنساتے رہیں، مسکراتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. اگلے ہفتے اچھے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.